بھائی اس کو بلاؤ واپس، میری باری کے اندر میرا ٹائم چل رہا ہے تو لائیو کیوں پھینک دی یار؟ وعلیکم السلام، بلاؤ اس کو، آپ کی لائیو آج نہیں آ رہی بس. ایک منٹ بھائی، صرف ایک منٹ دے دیں. ہاں بلاؤ جلدی بلاؤ، میرا ٹائم 2 منٹ لگاؤ، اس کو واپس بلاؤ پکوڑے کو. کرو یار کرو، اس کو شیئر کرو. بھاگ کیوں گیا بگوڑا ایک دم؟ اب ایک دم پھر چیخ اٹھی ہے، ایک دم پیڑ سٹارٹ ہوئی ہے، تو کرے بکواس اور میں تجھے. اچھا دیکھیں، ایک تو میں ذرا افضل بھائی صاحب کو لے لو. اچھا دیکھیں، میں یہ بات کہی تھی میں نے یار، ایک 1 to 1 تو کہی نہیں تھی، پھر اویس بھائی تب پھینکنی تھی، تب پھینک دینی تھی یار. میں اس ایک منٹ ٹھہرے، افضل صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جب یہ بدمزگی یا کچھ ایسی چیز ہو تو بھائی دونوں کو. یار یہ بعد کی بات ہے، اس کو بلائیں، بگوڑے کو واپس بلائیں. اسی لیے میں آپ کو واٹس ایپ پہ کال کر رہا تھا کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور کریش کرنے کا ٹائم اب یار میری بات سنیں، سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جس وقت اس نے افضل صاحب میری باری کریش کیوں کی؟ او بھائی اس لیے کہ وہ بھی مائک میوٹ کر ان میوٹ کر کے وہ بھی انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا. مجھے بتائیں میں ادھر کیا کروں پھر؟ چلو دوبارہ بولے، فریز ہو گئی تھی آپ کی بات، فریز ہو گئی تھی، دوبارہ بولے. ہاں جی، میری 2 منٹ کا ٹائم ہے، وہ بگوڑے کو بلائیں واپس. کال کر کے یا پتہ کر لو، معاملہ ختم کرو. اس کو بہت ہی چار زبانی آتی تھے، بلاؤ ذرا انہوں چار زبانی میں دکھانا ہوتی کی ہے، بلاؤ ذرا. اور راگ جان بھائی میری بات سن لیں، افضل بھائی اس کو اس وقت ہولڈ کر رہے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ یار ایک دوسرے کے اوپر لان دان نہیں کرنی، کیونکہ میں لڑائی جھگڑا میں نہیں کرنا. 3 منٹ پورے لیے میرے ٹائم میں براڈ کیوں پھینکی؟ وہ بیچ میں بولا یار، وہ بھی بولنا شروع ہو گئے، آپ بھی بولنا شروع ہو گئے، تو یہ لڑائی کا پھر اس کے اور کیا ہونا تھا؟ نہیں اویس بھائی، اصل میں جب اس نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ بھونکنا شروع کیا ہے نا، اس ٹائم ہوسٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب جا رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس ٹائم روکنا چاہیے. اگر نہیں روکا تو پھر سیکر بھائی کو اس کا پورا موقع دیں، اس کا پورا ٹائم دیں. ابوبکر بھائی آئی ایگری، میں اس چیز کو مانتا ہوں. میں اس وقت یہ ہینڈ اوور کر کے گیا تھا افضل بھائی کے اوپر، ٹھیک ہے. میں نے بتایا بھی ہے کہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں، میں دکھایا بھی ہے کہ میں ظاہری بات ہے اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میں دوسرے فون سے آپ کو کال جاری تھی، واٹس ایپ کے اوپر میں نے آپ کو کال پہ انگیج کر رہا تھا کہ یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے اور آپ آئیں، کیونکہ یہ کریش ہونے کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ ہمیں بھی موقع دیں تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب اس کی بیوی جو ہے نا نصرت جہاں صاحبہ. ٹھہر جے ابوبکر بھی ٹھہر جے یار. وہ اس کو بڑائے صاحب اس کو کریں کال، ان کو یار بڑائی صاحب کال کریں، بولے آ جائیے آئیں ذرا. نہیں، میں یہ فار دا ریکارڈ یہ بات آ جائے کہ میں نے 11:48 AM میرا ٹائم اور 11:51 AM میرا ٹائم، یہ میں نے اویس صاحب کو دوسرے فون سے واٹس ایپ سے کال کر کے ان کو واپس لانے کی اپنی طرف سے میں کر رہا تھا. میری توجہ ادھر تھی کہ اویس کو واپس لاؤں کہ سچویشن. بگوڑے کی پھٹی کیوں ہے؟ جب ابھی میں شروع ہوا ہوں، اس بگوڑے کی پھٹی کیوں ہے؟ اب میں ان کو کال کر کے وڑائچ صاحب ایک منٹ معذرت. سب سے پہلی بات یہ ہے وڑائچ صاحب کہ جب آپ لوگ گفتگو کروانے کے لیے 2 بندے موجود ہیں نا، تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ پھر گفتگو کروائیں. پھر ایک بندہ پیچھے چلا جائے اور دوسرا اس کو لینے چلا جائے، اور یہاں پہ حضرت عائشہ کی گستاخی ہوتی رہے، کوئی بندہ بھونکتا رہے حضرت عائشہ کے اوپر. تو یہ جو اگر اس کو پھر جواب دیا جائے، پھر آپ کہیں جی ہم نے تو براڑ گرا دی تھی، نہیں وہ انہوں نے ہونے لگی تھی. تو زاہد صاحب حضرت عائشہ کے ضمن میں تو سیکر صاحب جو موجود ہیں انہوں نے جواب دے دیا نا. اور جو بندہ موجود نہیں، پھر براڑ کیوں گرائی براڈ کیوں زاہد بھائی؟ اس لیے جب اس نے پاس کر لی تھی پھر سیکر کو زاہد بھائی وہ مائک ان میوٹ کر کے وہ بھی شروع ہو گئے تھے، تو بدمزگی کی وجہ سے ہی میں نے گرائی. جب اس نے اپنی بات کر لی تھی ہم نیچے بیٹھے ہیں
हम नीचे बैठे हैं तो मुझे उठा लेता, मैं ये डिबेट करवा देता और देखना कैसा मजेदार काम होता। बुलाओ उसको, खुश रहे। चलो यार, बाकी भाइयों बात सुनो, बाकी बातें बाद की हैं। वड़ैच साहब उसको के भगोड़े को वापस आए। अफजल भाई कॉल को लाउड पे ना ले यार, ऐसे ना करें, ये बद इखलाकी होती है। आप अपने पर्सनल मैं पहले इन्फॉर्म करता हूँ मेरे भाई, बद इखलाकी नहीं, मैं इन्फॉर्म करता हूँ पहले, मैं बोलने नहीं देता। तो वैस भाई थोड़ा जिहा तौला रखिया करो, एडा कोई वड़ैच साहब केड़ा घर दी गल्लां पुछण लगे ने। नहीं, वैसे भी मैं पहले इन्फॉर्म करता हूँ यार। भगोड़ा भाग गया है, मैंने पता सी यही होना, मैं जितनी कोशिश कर रही कि इसका। और यार छोड़े इस चीज को, अभी छोड़ दे इस चीज को, उसको जरा अपने नबी नु झूठा कह के निकल गया। नहीं वो सीकर भाई देखें, ये तो यार ज्यादती है ना कि एक तो उनको हम इतना प्रोटोकॉल दें कि नीचे कमेंट ही म्यूट है, कमेंट बंद कर दिए। वाह भी वाह यार, हम होने चाहिए, चल जो भी है जैसे भी है, लेकिन उसको बुलाओ भगोड़े को, जवाब ले यार। हमारे जब वहां पे हमारे लोग वहां पे जाते हैं तो अच्छा, लाइव से भी मैं मैसेज नशर कर दूं, क्योंकि लोग सुन रहे होते हैं। शेख हादी साहब, मैं आपको कॉल कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, आप कॉल उठाएं और जो पेंडिंग मैटर यहाँ पे इस ब्राड पे चल रहा था उसको रीस्टार्ट करें, इसको आज हम रिजॉल्व करें प्लीज। अच्छा यार, मैं अब आप लोग यार बात कर ले, मेरे मेहमान आए हैं प्लीज, मैं बिजी हूँ। जो भी है आप लोग सारे मॉडरेटर हैं, तो मुझे माफी दे दें बस अब। नो प्रॉब्लम यार, अवैस के ऊपर कोई ना बात करे, चलो जो हो गया, उसको खुश रहे बोला है। नहीं अबू बकर भाई गल वेखो ना कि ये दो बंदे साडे जेडे ने ओ ब्राड जेडी है होल्ड कर रहे ने, एक बंदा पीछे चला गया, दूजा ओनू बुलाण चला गया। को नहीं जैद भाई, को नहीं, छोटा है यार, गलती होगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा पाकिस्तान भाई, आप हैं यहाँ पे, शेख हादी साहब को आप राब्ता करें, उन्हें कहें कि ये कम से कम कॉल तो आंसर करें ना यार। अब ब्राडा तो भज के पीछा करना उन्होंने आंदा, रिकॉर्ड करनी आउंदी, तो हुण जे तू गल सिचुएशन जी शेख साहब यार आंसर ते करो ना। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਲੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫॉर द रैकेट ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा शेख साहब, बदमजगी हो गई है, ब्राड क्रैश कर दी, जैसे कि शुरू में डिस्क्लेमर अवैस साहब ने दे दिया था, उसको रीस्टार्ट कर दिया गया है। मीर साहब को वापस लाएं ताकि इस बात को आज कंक्लूड कर दिया जाए। आ जाए। नहीं वो जो पता क्या है, वो अगर आपने आना है तो ब्रॉड पर आ जाए। वो जो हम बात आपको करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो लोगों ने पहले ही समझ ली है बात। दूसरा मसला ये है कि ये जो बात की गई है ना, ये हवाला पढ़कर बताया है इनकी बुजुर्गों की किताबों से, और वो अब लोगों को दिखाने लगे हैं किताब का हवाला, जो बात की गई है वो आप सुने पहले, तो फिर उसके अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहने, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, उसको क्या रेपिटेशन ना इधर आके कर ले। हाँ इधर आ जाए ना भाई, इधर बुलाए, भगोड़ा स्क्रिप्ट ना पढ़े और प्रोपेगेट ना करे चीजों को। या इधर आ जाए या होस्ट टू होस्ट शुरू कर ले। ये बहाना भी टूट गया अब कि जी फलां गुस्ताख है तो उससे बात नहीं करनी, फलां ऐसा है तो उससे बात नहीं करनी। ये भी बहाना टूट गया। और ये बहाना भी फ्लॉप हो गया कि जी हम फलां की ब्रॉड पे नहीं जा सकते, आप फलां की नहीं जा सकते। बैठा हुआ था ना इधर, चौंकड़ी मार के बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक है जी। तो सिंपल बात यह है कि बराह करम इधर आ जाएं, जहां बात टूटी है वहां आके बात शुरू करें। अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन ये निकलता है, वैसे तो उसूली तौर पर ये दूसरा ऑप्शन ये निकलता है होस्ट टू होस्ट आ जाए, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। अगर इसमें हिम्मत पैदा हो गई है बाहर निकलने की, तो फिर हिम्मत थोड़ी सी पसली अपनी मजीद तगड़ी करे बात सुनने की, सिर्फ ये है। चीखें क्यों मारी हैं फिर भाई, सुन बात। ये नहीं, हाँ ये ज्यादती है। और ठीक है, जो भी बात हुई दोनों तरफ से हम उसको स्किप कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अब आ जाए। ब्रॉड गिरी नहीं गिरी, कैसे कंट्रोल, क्या नहीं होना, इस पे मुसलमान दोस्त हमारे गिला शिकवा अच्छा ना करें। अवैस साहब, ठीक है, अवैस साहब, वो शेख हादी का बार बार इसरार यही है कि मैं उधर जाऊं, मैं उनकी बराड पे जाके यही पैगाम, वो पैगाम नहीं पहुंचाना चाह रहे शेख साहब जो हैं। नहीं पैगाम उधर जाके क्या देना है बड़ैच साहब, ये देखिए बड़ा साहब नहीं जाए, बड़ा साहब तकल्लुफ ना करें। पैगाम इतना ही देना है कि होस्ट टू होस्ट कनेक्ट कर ले आपके साथ। नहीं छोड़ दे, पैगाम चला गया। आपको क्या लगता है पैगाम जा नहीं रहा? अगर उनका पैगाम यहां आ गया है, आपको क्या लगता है ये ब्रॉड वहां नहीं पहुंच रही होगी? चले फॉर द रैकेट शेख हादी साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी जो पैगाम दिया है
کہ آپ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کونیکٹ کر لیں اویس صاحب کی براڈ کے ساتھ, یا آپ براڈ کے اوپر واپس میر سلیم صاحب آ جائیں اور اس قضیے کو ہم نپٹا دیں. ہماری طرف سے یہ کلیئر کٹ آپ کو یہ پیغام ہے, اور جو سن رہے ہیں شیخ صاحب تک پہنچا یار ایک سیکنڈ موقع دیجیے گا ذرا وڑائچ صاحب, موقع دیجیے گا. ایک منٹ سیکر بھائی آپ بات کر لیجیے گا. میں صرف اتنا بتا دوں کہ وڑائچ صاحب اتنی ہمیں مطلب ہم نے جہاں تک کوشش کرنی تھی نا گفتگو کرانے کی وہ ہم نے کی ہے. ہم کسی کی منت سماجت نہیں کریں گے. جن نے آنا ہے آ کے گل کرنی ہے کر لوے. مرزا قادیانی صاحب نو سچا ہونا ثابت کرنا ہے, ساڈے ٹھڈ چ کوئی پیڑ نہیں. ہم وہی حوالہ یہاں پہ رکھیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولے ہے, اور ہم یہاں پہ ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کو بتائیں گے. انہوں نے ٹھڈ چ پیڑ نا, انہوں نے مرزا صاحب نو سچا ثابت کرنا ہے. سانو اتنے بہ کے جھوٹا کہندے رہن. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی جا کے ہم منت سماجت کریں, ان کی براڈ پہ جا کے نہیں جی تسی آؤ تے آ کے گل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد سیکر کو یہ گستاخ نہ کہیں. کوئی مرزئی مرزوٹے جتنے ہیں فراڈی ادھر گھومتے پھرتے ہیں, آوارہ گردی کر رہے ہیں اور وہ ٹاؤن ٹاؤن کرتے ہیں, یہ کوئی بھی ان کو گستاخ نہ کہے سیکر کو. کیونکہ تمہارا پاپو ڈبیٹر اپنی طرف سے جو چیمپئن ہے تمہارا چھوڑا ہوا ملحد آوارہ, وہ ادھر آ کے اس کے ساتھ گفتگو کر گیا ہمارے بھائی کے ساتھ. تو پھر یہ بہانہ نہیں اب چلے گا کہ جی فلاں گستاخ ہے اس لیے اس کے ساتھ بات نہیں ہوتی, اس نے مرزا چھاپ کے ساتھ جھینگا لالا ہر کر دیا تھا اس لیے اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. یہ ڈرامہ نہیں اب چلے گا, یہ تو کلیئر ہو گیا نا. دوسری بات میں یہ کر کے میں چاہوں گا دیگر بھائی اس پہ بات کریں. وڑائچ صاحب دیکھیں, سب کو پتا ہے آپ بہت لاؤڈ ہیں. وڑائچ صاحب آپ کوئی ایسی آپ کی آواز نہیں ہے جو پہنچانے کے لیے آپ کو پیچھے بھاگنا پڑے اور ہاتھ پکڑنا پڑے اور رکوانا پڑے. بہ جو تیرے منہ تے کرو, اچھا رکو تو صحیح. افضل وڑائچ صاحب آپ کا قد کاٹ آواز کا اس سے بہت اونچا ہے. آپ یہاں آپ لے کے آئے ہو نا, کیسے آیا وہ تسی لے کے آئے ہو, وہ نہیں نکلتا سی. نہ وہ اس رات پیدا ہوا ہے جس رات کوئی مرد پیدا ہوتا ہو. سلیم میر اس رات پیدا نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو نکال کر لے کے آئے ہو نا تو آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے. لہذا کسی قسم کی کوئی ڈیسپریشن, کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کا ہمیں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ آپ جو بھی بھگتنا سے ان بھگت نا. یہ تو چلو براڈ گئی جیسے بھی گئی, ورنہ چاہیے تو یہ تھا اصولی طور پر کہ بھگت تھا. مسل آزمانے دیتے دونوں کو جدھر تک بات جاتی. 2 منٹ کے اندر میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں اس کا ملحد ننگا ہو کے, اس کا ملحد, میں 2 منٹ میں ملحد ننگا ہو کے اس کا پبلک میں نہ آتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ننگی گالیاں دینی تھی, یہاں ننگی گالیاں 2 منٹ میں. کیوں بھاگتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کو پتا ہے 2 منٹ لگیں گے اس کا ملحد باہر آ جائے گا 2 منٹ میں. قادیانی خود اس کو جوتے مار کے کہیں گے تو مرزا صاحب دی سچائی کرن گیا سے, تو تے قادیانیت دا پٹھا با کے آ گیا, تو جماعت ہی روڑ دیتی ہے. یہ چیز ہے. خیر میں حقیقت یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ سے سن رہا تھا اور ساتھ میں مطالعہ, کیونکہ میرا اپنا پروگرام تھوڑی دیر میں چلنے والا ہے, آئی گیس ودن 30 منٹس. میں نے خاموشی سنتے رہنا تھا, مگر حقیقت یہ ہے ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی الحمدللہ, اور وہ سیکر کو اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دیا. وہ یہ چیز ہے ان کا بڑے سے بڑا فنیر مرزا غلام احمد قادیانی کی صداقت کو ثابت نہیں کر سکتا. ایک منطقی مغالطہ, وٹ اباؤٹزم, دیٹس اٹ. انہوں کی کہندے ہو, اچھا انہوں نے کچھ نہیں کہندے پھر انہوں بھی کچھ نہ کہو. یہ کس طرح کی جسٹیفیکیشن ہے؟ بہت شکریہ جی. عامر بھائی یہاں پہ ہوا پتہ کیا ہے, وہ کسی بندے نے پوچھا نا اپنے بیٹے سے کہ تیرا جو رزلٹ سی تیرا کی بنیا, کہنا جی چوہی صاحب دا منڈا فیل ہے. انہیں پھر پوچھا تیرا کی بنیا ہے, کہنا جی وہ فلانے نمبردار دا بھی منڈا فیل ہو گیا. انہوں نے کہا تیرا کی بنیا ہے, کہنا جی ہیڈ ماسٹر صاحب دا بھی منڈا فیل ہو گیا. انہیں 5ویں باری پوچھا میں تیرا پوچھنا تیرا کی بنیا ہے, کہنا میں بھی فیل ہاں. میر سلیم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا یہاں پہ کہ مرزا قادیانی صاحب نے بائبل کے اوپر جھوٹ اس لیے بولے ہیں کہ رحمت اللہ کرانی صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی تھی, لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اختیار حاصل ہے کہ مرزا قادیانی کا جو دل کرے وہ لکھ دے. حالانکہ سیکر نے جو مرزا قادیانی کی بات پیش کی ہے, مرزا قادیانی کا دعویٰ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں جو کچھ کیا ہے میں بائبل جو پڑھ کے لکھا ہے, میں نے بائبل کی عبارات کوٹ کی ہیں. مرزا قادیانی کا دعویٰ موجود ہے
तो जब उसका दावा मौजूद है तो फिर मीर सलीम साहब आपने मिर्ज़ा कादियानी साहब का वो दावा सच्चा साबित करना है। आपने रहमतुल्लाह किरानवी साहब को झूठा नहीं साबित करना, आपने अपने मसीह मौद को सच्चा साबित करना है। तो यहाँ पे तो मैं जितना मामला मुझे नज़र आया वो यही नज़र आया कि फलाने का मुंडा फेल है, फलाने का मुंडा फेल है, फलाने का मुंडा फेल है, इसे वास्ते मरासियां का भी फेल है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और काबिल गौर है। आमिर हक भाई, आप भी जरा ये मेरी बात जरा सुनिएगा, छोटी सी बात है जी। कि ये परसों ओपन आइज और काइंड हार्टेड ये गए हुए थे मियाँ की ब्रॉड पे, और वहां पे यही हवाला रखा हुआ था और उनसे जवाब लेने की कोशिश की थी। वो जवाब बहरहाल जो भी उन्होंने दिया वो तो आपको पता ही क्या जवाब दिया होगा। बहरहाल उन्होंने वहां पे एक बात की है कमालात ने, उसने कहा है कि ये इल्जामी जवाब जो है ना ये देना कुरान से साबित है। ये उसकी बात मेरे पास रिकॉर्डेड है कि इल्जामी जवाब देना कुरान से साबित है। अब हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें लिखी हुई हैं वो तुरात या अंजील के हवाले से लिखी हुई हैं, और मिर्जा कादियानी ने जो बात की हुई है, हालांकि उसका अपना दावा है कि मेरी ये कोई भी बात जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सख्त अल्फाज हैं ये अंजील और तुरात के हवाले से ही लिखी हैं, और हमारा ये दावा है कि हरगिज नहीं, मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला है और उसने ये अपना गंद जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर निकाला हुआ है और गालियां दी हुई हैं और तौहीन की हुई है, और अपना उसने एक नतीजा निकाल के ईसा अलैहिस्सलाम पे बुख्तान लगाए हुए हैं। ऐसी कोई बात तुरात या अंजील में नहीं लिखी हुई, ये हमारा दावा है। और आज भी यही बात हो रही थी और मीर सलीम यहाँ पे वो बात साबित नहीं करके जा सका और भाग गया खुसरा हजरत आयशा पे भोंग के। ये है वो असल बात जी। नहीं, अभी बात ये है कि अभी तो छोटा सा मैंने हवाले कम अज कम तकरीबन 38 हवाला जात है जिसमें से मैं ये साबित करूंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने एक फाहिशा औरत के साथ जो है बदफेली की है। इसको के पैरों पे बात डाले वापस आए। ये हवाले तैयार ही तेरे लिए किए मैंने, मुझे पता था तू इधर बकवास करेगा। भागा क्यों है खुसरे? तूने माइक क्यों खोला बीच में? तूने माइक क्यों खोला और तुझे मेरे 3 मिनट का इतना डर क्यों था? तुझे पता था आगे से तुझे आने क्या वाली है, तुझे इसलिए डर था 3 मिनट का। यानी अवैस ने यार जुल्म किया। मैं एक चीज यहाँ कहता चलूं यार, इको हो रही है जरा भाई माइक। जी जी। अच्छा सिकर भाई, एक चीज कहता चलूं, ये अगर ये कहे ना कि माइक इसने इसलिए खोला है कि मिर्जा साहब के मुतालिक सख्त, हकीकत यह है कि जिस मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा था उस तनाजुर में इसने क्या कुछ नहीं कहा। आपने माइक ओपन किया, इसने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से क्या जुमले बोले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से इसने जुमले, यानी वहां अगर इसको मुअतरिज इबारत के ऊपर कोई एतराज वाली जो इबारत है उस पर कोई है, वहां जो जुमले जो इसने जुमले दोहराए, लफ्ज दोहरा कर चित कर उन जुमलों को बोला। किसी ने माइक अनम्यूट किया, कहा कि ये तुम्हारा तरीकाकार ठीक नहीं है, गलत है, ये तुम सही नहीं कर रहे। पता क्यों? क्योंकि मुद्दा ये डिस्कस हो रहा है। हत्तुल वसा कोशिश की जाएगी कि अल्फाज का चुनाव अखलाक के दायरा कार में रहे, अंबिया का जिक्र है, जारी बात है। किसी भी तरह आप अंदाजा करें कि जैसे ही जिक्र हमारे भाई ने कहा कि अगर मैं इसको पलटा कर ये जुमला कहूं तो आपको अच्छा लगे या ना कहें, तो पाट गया, पड़ गई, यानी इल्जामी, ये तो सारा मुकदमा तो सीकर जीत गया। अगर ये कहे कि जी सीकर ने सख्त बात कर दी और गुस्ताखी कर दी, तो यही तो सीकर कह रहा है, उसने भी तो इल्जामी जवाब में कही है, इसका मतलब है इल्जामी जवाब में ये बात कहना ठीक नहीं है, तो पड़ गया, तेरा मुकदमा सारा बढ़ गया। तुम्हारा इस मुकदमे पर सीकर की बात पर माइक खोलकर शोर डालना ये सीकर की जीत है, ये इस मुकदमे की जीत है कि इल्जामी जवाब गुस्ताखी से बालातर नहीं हो सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इल्जामी जवाब में हमने कह दिया, जो भी बोल दिया आगे बढ़ने दो, ये चीज नहीं हो सकती। तो ये तो मेरे ख्याल से सीकर ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। उसने मिर्जा साहब का भी मंजा टाइट कर दिया है और सलीम मीर का जो मकरू चेहरा है उसको भी बेनकाब करके पब्लिक के अंदर रख दिया, वरना तो अपनी बारी की गल करता। तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त। अच्छा एक और चीज मैं यहां कहूं, ये कह रहे हैं कि जी वो सलीम मीर आया और जनाब उसने बड़ा ये वो फलाना कर दिया। क्या किया, क्या बक उसने की? मैंने सुना, उसको सुन रहा था मैं उसको, ऐसे ही वही स्क्रिप्ट रटी रटाई उन्हें इंज कह देता, उन्हें भाई मिर्जा साहब की ताकत पे बात चले, ये तो छोड़े ना, ये तो हम भी रेपिटेशन ना हो। मैं एक नुकता रखना चाहता हूं, वो ये, यहां इतने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, मुझे कोई बता सकता है कि हम में से किसी एक को, जो हमारे स्पीकर्स हैं, डिबेटर्स हैं, चले मुझे एक्सक्लूड भी कर दें, मुझे कर दें ना, मैं 3 में ना 13 में, ठीक है ना, मैं खुद ये मानता हूं कि मैं तो मेरे पास इनको तब लाया करे जब पोस्टमार्टम करवाना हो,
ठीक है, इंटेलेक्चुअली। तो हमारे वो डिबेटर जो फ़ाल हैं डिबेट्स में और इंगेज कर रहे हैं इनके साथ इंटरेक्टिव सेशन में, मुझे दिल पर हाथ रख कर बताएं हमारे कौन से मेन स्ट्रीम डिबेटर्स को ये इस तरीके से ब्रॉड पे लेके मौका देंगे बात करने का? जब कभी बताएं, फलां गालीबाज है, फलां गुस्ताख है, फलाना गल नहीं करनी, फलाना हो गई है, फलाना तय नहीं, फलाना इंज नहीं, फलाना ये नहीं। मुझे बताएं कौन सा आपका मेन स्ट्रीम डिबेटर है जिसको ये स्टेज पे लेके बात कर सकते हैं ऐसे? नेम इट। किसके साथ बात कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह इसको मौका दिया जा रहा था, जिस तरह इसको इजहार करने का मौका दिया जा रहा था, ऐसे मुसलमान को वहां पे इजहार करने का मौका दिया जाए? नेवर एवर। तो यहां से अहमदियों और कादियानियों को यहां सीखने का एक मौका यह मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डिबेट करने के कायल हैं, डिबेट करवा सकते हैं, करते हैं। हमारे भाई ने अपने दोस्तों, अपने भाइयों की जो है वो इल्जाम और शायद नाराजगी मोल ले ली, मगर उसने ब्रॉड गिरा दी। उसको पता चल गया मेरे हाथ से चीज निकली, उसने ब्रॉड गिरा दी। ये है हमारे लोगों का म्यार। आप लोग नहीं। मैं देखता कि कैसे दोनों को उतारा जाता या दोनों को साइड पे किया जाता। इधर जो मुसलमानों के साथ होना था वो सबको पता है। खैर ये सूरत हाल है जी। ओए दू छड़ दियो, एक कॉल नहीं चुकदा इनू। मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ सामने कॉल करा मैं जायद भाई हैं, एक कॉल नहीं चुकदा सलीम भाई। आमिर भाई नहीं उठाएगा, नहीं जायद भाई मौका अच्छा देखिए आमिर भाई बात पता है, एक मिनट सिकर भाई मैं देता हूँ मौका मेरा, मैं अपना ना थोड़ा सा उनको बता दूं। अच्छा अवैस, मैं यहाँ पे अफजल वराइज साहब भी, मैं यहाँ पे मौजूद था ऊपर, मुझे पर्सनल अटैक कर रहा था। मेरी क्यों तकलीफ है इतनी? ये हर जगह पे मेरा नाम लेता है। मैं किसी भी ब्राड के ऊपर ये बैठा हो ऊपर, मैं नीचे से गुजर जाऊं तो इसको ऐसा क्यों महसूस होता है कि ना दे घर जवाई आ गया? मतलब क्यों इतनी जल्दी ये मेरा नाम लेता है और मुझे पर्सनल अटैक करता है? सारा दिन टैक्सियां चलाने वाले ये जो है ना जर्मन टैक्सी ग्रुप, जिसको पुत्र तू कह रहा था ना पंप ते काम करता है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਝੰਡਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। आज कल तो वैसे ही हालात बड़े खराब जी। अच्छा मैं आमिर भाई जरा एक चीज ऐड कर दूं, भाइयों मुझे एक मिनट का मौका दे दे। जी जी एक एक चीज ऐड कर दूं। नीचे वो दो शुरलियां बेचारी आई हैं, मीर सलीम ने गल में घुस के माला। अच्छा जी, मीर सलीम पहले अपनी ब्रॉड पे बैठकर मिर्जा साहब को आज तक सच्चा साबित नहीं कर सका। आज मीर सलीम आकर घर में किसी के आके मिर्जा साहब को झूठा करके चला गया। ओए बेगैरतो, बेशर्मो, कोई एक हलाल का पैदा नहीं किया जो मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित कर दे। लख दी लानत है पूरी जमात के ऊपर तुम्हारी। पा दो ए भी मेरे ते पा दो नहीं, खुदा की कसम ये अवैस को, अवैस तेनू लवे मौला, तूने ब्रॉड क्यों फेंकी? जरा 2 मिनट उसकी जो चीखें निकलनी थी, आज तू देखता तो सही इसके साथ होती क्या है। इसको चर्ब जुबानी का बड़ा जोम है ना, अपना बहुत जोम है चर्ब जुबानी का। तो आज देखता तो इसके साथ होती क्या है। मिर्जा 2 लीरों में करके मैंने इसके गले में टांग के भेजना था आज। यार ब्रॉड क्यों फेंकी? ज्यादती की है ना, ब्रॉड नहीं फेंकनी चाहिए थी। या फिर मामला उमर भाई एक मिनट या फिर मामला लगाना नहीं था। अब वो भगोड़ा जो है, उस भगोड़े को चेक करो कि खुदा की कसम इतनी गैरत उसको दिलाई है। मिर्जा साहब के कोट पढ़ सुनाए है कि जनाब इल्मो मार्फत के वो बराहीन से मुखालफों के मुंह बंद कर देंगे। एक दफा उस बेचारे ने ये नहीं कहा कि ए वेख फलानी बाइबल च लिखा है, मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। लख दी लानत है बगैर तो डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। बेटा गाली नहीं निकाली, जो वो बकवास कर रहा था ना, उसी बकवास का जवाब मैं दे रहा था। और वो देना मैंने ऐसे था कि तुम्हारी यकीन करो अंदर तक काम जानता तुम लोग का जवाब आने के लगा था जी। करें जी भाई को बात। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ एक बात करूँ, उसके बाद मैं म्यूट लगा लूँगा। मुझे सिर्फ दुख और तकलीफ पता कैसे कर भाई, जब उसके 3 मिनट या 2 मिनट उसने बात की, पूरी बात करके जब सीकर भाई ने बात की थी, इनको 2 मिनट पूरी बात करने देते, उसके बाद करते, उसका म्यूट लगाते, ब्रॉड ना फेंकते।
यार यही अफसोस होता है कि यार मॉडरेटर जो भी थे उनको ये तो देखना चाहिए था ना कि कम से कम उसने बात की, अब उसका जवाब तो पूरा देने दे, उसके बाद फेंक देते, कोई इशू नहीं था। ये थोड़ी होता है कि अगला बंदा कर जाए दूसरे बारी ब्रॉड फेंक दो। यार ये तो कोई तरीका ही नहीं है। इस चीज पे दुख है, बाकी चले कोई बात नहीं, जो कर दिया हो गया बस। उमर साहब सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा, 2 जी सेकंड। जी अफसर भाई मैं म्यूट लगा रहा हूं, मैं ऐसे नीचे पाकिस्तान भाई आपने कमेंट, पाकिस्तान भाई आप नीचे कमेंट्स आप लिख रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जितनी भी आपने ये डिस्कशन सुनी है इसमें मीर साहब वो हवाला पेश नहीं कर सके, बाकी सारी बातें इन्होंने उधर उधर की हैं। उन्होंने वो हवाला बाइबल का पेश करना था और मिर्जा साहब की इबारत का झूठियां छोड़ के भाग गया, जिक्र मिर्जा के ऊपर साहब को इल्जाम था, झूठा कज़ाब साबित हाँ, करके गया। वो उन्होंने पेश नहीं किया। पाकिस्तान भाई आपके ऊपर की जिम्मेदारी है कि आप उन्हें क्वेश्चन करें कि जब इतना टाइम आप लोगों ने 2-2 मिनट फिर 3 मिनट भी लिए तो उसमें कहाँ गया वो मिर्जा साहब का हवाला जो शेख हादी अपनी ब्राड के ऊपर वावेले करते फिर रहा है कि हवाला आ गया, हवाला आ गया। वो यहाँ पे आए, हवाला पेश नहीं किया। अच्छा ज़फरुल्लाह शाह साहब यहाँ पे आए हैं, आपको वेलकम है। शाह साहब मैं कल साहिल खान साहब की ब्राड के ऊपर आमर हक साहब वहाँ पे मौजूद थे, मैं उन्हें देख के गया था। आमर हक साहब को मैंने वो सारी सिचुएशन ब्रीफ की थी जो राना राशिद की ब्राड के ऊपर अकर हुई और उसकी शदीद मजम्मत की, जो राजा अताउल मनान ने जो बिहेवियर वहाँ पे डिस्प्ले किया, आपके साथ जिस तरह से बदसलूकी वहाँ पे हुई, आपके फौरन नाइट राइडर के साथ जो बदसलूकी हुई, उसके बाद पीर अस्कानी साहब के साथ जिस तरह बदसलूकी हुई और इस तरह हमारे खलीफा वक़्त सैयद हसन काज़मी के साथ जिस तरह बदसलूकी हुई, 4 लोगों के साथ इंतहाई इंसानियत सोज सलूक वहाँ पे हुआ और राजा अताउल मनान ने सिस्टमेटिकली सोच समझ कर इन अ प्री मेडिटेटेड मैनर ये कैरी आउट किया। शदीद मजम्मत है राजा साहब आपके इस तर्ज अमल की कि हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर्स आपकी ब्राड के ऊपर चल के जाएं दीन इस्लाम की बात करने और आप वहाँ जाके तजलील करते हैं, घटिया हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर शदीद एहतजाज है हमारा। और मेरा कल मुतालबा है, आमर हक साहब से मैंने बात की थी कि हमारे जो डिबेटर्स हैं फ्रंट लाइन, उन्हें किसी कीमत पर भी आइंदा इनकी ब्राड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ होस्ट टू होस्ट डिस्कशन करें और इनको नानी याद करवा दें कि ये जो हमने इनके साथ सिलारामी का रवैया रखा हुआ था, इन्होंने उसका बिल्कुल एहतराम नहीं किया, कोई लिहाज नहीं किया, बल्कि बदलियाजी की कल इन्होंने मिसाल कायम की है। वो राना राशिद साहब जी बिल्कुल अपना वड़ाई साहब, एक तो टेक्निकली आप लोगों को, अवैस साहब और आप लोगों को टेक्निकली मजबूत होना चाहिए। जो भी आ रहा है कि आपने ब्रॉडकास्ट करने के बजाय आपको मौका देना चाहिए। सैफी मुंह बंद कर सैफी। अब ये सीकर की औकात ही नहीं है तो ये क्यों पंगे लेता है? मुंह बंद कर। ना मेहर भाई नहीं, बगैर बकवास करने आ गया। चुप, मुंह बंद कर। चुप, गाली कड़ी, गाल कड़ी, तू डरंदा नहीं। नहीं तेरी आवाज नहीं निकलदा, तोड़ से गुस्सा दे दे यार। मेहर भाई की हो गया यार। शाह साहब गल कर रहे सिकर भाई, हर दफा हम ये बकवास करते हैं। एक सेकंड ठहर जाओ यार, पहले तो ये बताए कि इस मिर्जा साहब के मुताबिक इस कतूरे को उठा कौन रहा है? किसको खारिश उठी हुई है? अवैस ब्रॉड बंद कर दो, मेरे ख्याल में दूसरी ब्रॉड लगा देते हैं। ब्रॉड तो आपने फुद्दू कर दी है। नहीं, कोई बंदा ना उठाए, कोई बंदा गैर मुतलका स्पीकर्स को ना उठाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसको इसकी वालदा नीचे नहीं लेती, आपने ब्रॉड के ऊपर ले लिया। जी शाह साहब अवैस खुद उठाता है, मैं उठाता हूँ या स्पीकर साहब आप उठाएं। जी शाह साहब, शाह साहब तो लगता है नीचे उतर गए हैं। अच्छा अफजल भाई, मैं एक मिनट यार, अगर वो आया था तो मॉडरेटर उसको उतार देता और उमर भाई आपको उस तरह बोलने की जरूरत नहीं थी, प्लीज। मॉडरेटर भी पता नहीं किसने उठाया है, और जब ऊपर आया था तो मॉडरेटर जाग रहे होने थे ना। मेरा कॉल में नीचे गिर गया इसीलिए, नहीं तो मैं इसको ऊपर आने। सॉरी मैं फर्स्ट ऑफ अपने बिहेवियर पे सॉरी करता हूँ, मगर उसने आते ही म्यूट खोला। जब शाह साहब बात करें, हम सब चुप बैठे हैं, वो मामे फूफी का बेटा है जो आके बीच में बकवास कर रहे। अच्छा मैं अवे था थोड़ा, मगर मुझे आवाज आई। इसने जुमला एक बोला है, मैं सुन रहा था। इसने जुमला बोला है, कहता जी वो सीकर के अंदर अगर नहीं, वो भाई सीकर तो इधर मौजूद है उसी ब्रॉड पे जहां जो ब्रॉड गिरी है। वो बंदा किधर है? सीकर तो वही मौजूद है, ब्रॉड वही, लोग वही, होस्ट वही, सीकर भी वही,
आप अपनी वही तशरीफ लेके यहां आ जाएं, ये सिंपल सी बात है। अब मेरे को तो वैसे भी जनाब 7 तो 8 मिनट ने और मैं निकल जाऊंगा, मगर हकीकत ये है कि उसूली तौर पर इसको चाहिए था कि ये वापस, जैसे ब्रॉड गिरी है, अगर इसको लगता है इसका मुकदमा मजबूत था, ये वापस आता। आपको क्या लगता है, इसको पता नहीं है कि ब्रॉड दोबारा ओपन होगी हुई है? इसको पता है भाई, कॉमन सेंस की बात है। ब्रॉड चल रही हो, मौजू जो है वो अपने क्लाइमैक्स के ऊपर पहुंचा हुआ हो, गुफ्तगू सुननी हो, ठीक है ना, होशो हवास में था ना, तो इसको तो मौजूद होना चाहिए था, मगर नहीं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज यहां ये चीज समझ आती है कि कुछ लोग मैंने देखे, जिस तरह ये वड़ैच साहब विरक साहब का नाम ले रहे थे, मैं तो नहीं जानता। हकीकत यह है कि विरक साहब को शायद इतना उनके घर में लोग नहीं जानते होंगे जितना वड़ैच साहब ने हमारे साथ इनको पॉपुलराइज करवाया है। वड़ैच साहब यकीनन इसका बड़ा एक क्रेडिट रखते हैं चंद लोगों को यहाँ पर पॉपुलराइज करवाने में। एक ये है, एक वाना भी कुछ बच्चा झमूरे हैं, बगल बच्चे हैं, गोदी बच्चा हैं, जिनको वड़ैच साहब ने पॉपुलराइज करवा दिया। अच्छा, एक तो ये चीज। अब वो जी इंज हो गया, उंज हो गया, सियाणी हत्ती आगे आ जाओ ना, सियाणी हत्ती आ जाओ। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती, जब दही का दलिया बन जाता है और रायता फैल जाता है, उस वक्त जमाते अहमदिया के बड़े बड़े फनियर जो हैं वो सामने आकर कहते हैं जी हम आपको बताएंगे अहमदियत का मुकदमा क्या है, ये सब तो लौंडे लपाड़े थे, इनको साइड पर कर दें, हम आपको बताएंगे। तो बाबा जी, अगर आपने बाद में आके झुंझुना बजाना है तो उस झुंझुने को अभी पकड़िए और बजा दीजिए, अभी आइए, को बराबरी की बात तो करें। वो विच गल छड़ के नस गया। एक मिनट के लिए सोचें, ये कमाल बात है कि जमात अहमदिया के नजदीक जिस आदमी की इनके नजदीक मीर सलीम की विनिंग पोजीशन थी ना भाई, यही तो कह रहे हैं ये, इनके नजदीक ये था कि मीर सलीम बड़ा दो टोक मुकदमा उसने जनाब मिर्जा साहब की सदाकत साबित कर दी थी ना, किथे नस गए। द लास्ट मैन स्टैंडिंग काउंट होता है, जो बंदा मैदान को जड़ से पकड़ के खड़ा है वो सीकर है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है जी चूंकि मुसलमान है इसलिए मैं बात नहीं, हकीकत है भाई, एक बंदा मैदान छोड़ के भाग गया और एक बंदा मैदान के अंदर मौजूद है, सिंपल, इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं नजर आ रही। अच्छा, अगर ये कहें कि जी सीकर ने जनाब ऊंचा बोल दिया, ऐसे बोल, भाई तू भी तू अगों सीधा गालां कड्डियां ने, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की है वो, तो सीकर ने तो एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन इल्जामी जवाब के तौर पर जुमला पेश किया था ना कि मिर्जा साहब की किताब में ये है, उसने सीधा आके सीकर की मां को गाली निकाली है। आपने सलीम मीर को सुना नहीं है, उसने आगे से मां की गाली निकाली है सीधी, उसने तो आर्ग्यूमेंट भी पेश नहीं किया, वो तो सीधा उन्हें मां पहन कर देती है। तो अब सोचने की बात यह है कि भाई ये तराज तो इसका रहा नहीं कि सीकर ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। भाई आप आओ, आके, हमारा भाई मौजूद है, मॉडरेटर्स मौजूद हैं, वड़ैच साहब हैं, मैं वड़ैच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मीर साहब मौजूद होंगे और हमारे दोस्त जो मॉडरेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो निकलूंगा, मेरे पास 4-5 मिनट हैं, मेरा अपना यूट्यूब पे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मगर हमारे मॉडरेटर्स मौजूद हैं, वो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करें, जो रूल तोड़ता भाई जाएं, ब्रॉड गिराने की जरूरत ही नहीं है, ताकि किसी को ये बहाना ना मिले। देखो, मुझे तो लगता है, सीधी गल दसा, मैनू इंज लगता है कुब्बे नूं लत्त रास आ गई, सलीम मीर ते इंतजार पे करते सी ब्रॉड डिगे, क्योंकि नस हो गया ही, बाकी बंदे तो वेखदे रह गए ने, की होए, बंदा नस गया। यानी हमें तो साफ मालूम लग रहा है कि सलीम मीर तो जैसे ब्रॉड गिरने का इंतजार कर रहा था कि ब्रॉड गिरे तो पैंपर पड़वा के निकल जाओ, वो नस गई, बंदा ही नस गई, हम सारे यहां बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब साफ और साफ ये है, क्लियर, कि जो बंदा मैदान के अंदर मौजूद है वो बंदा अपने मुकदमे के साथ डटा हुआ है, और वो उसके पास कहने को भी है, उसके पास मुकदमा रखने को भी है, उसके पास बहुत सी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भाई बिफोर यू गो आपके पास टाइम थोड़ा है, मैं आपकी भी प्रेजेंस में और तमाम जितने मुसलमान ऊपर और नीचे बैठे दोस्तों, आप अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आज आपने अपने ईमान का फैसला करके लिखना है, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो झूठ मैंने बाइबल पे बताए, मीर सलीम ने एक भी हवाला बाइबल से देके मुझे झूठा साबित किया इस पूरी गुफ्तगू में? एक भी नहीं। मैं कहता हूं लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर कि तुम आज भी ऐसे बंदे को अब मानो जो खुदा की कसम मैं तो ये झूठा पूछना करा चाह रहा हूं आपसे, जो कज़्ज़ाब करा रहा मैं अफजल वड़ैच साहब से भी
मैं अफजल बड़ैच साहब से भी, आपसे भी, अवैस से भी, सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शेख हादी क्या हमारे साथ करके गया था यहाँ पे कंप्रोमाइज़, और वो बोल के क्या गया था कि हमें वो हवाला मिल गया, हम वो हवाला दिखाएंगे। अब सलीम मीर जब आना था, वो हवाला दिखाने आना था या रहमतुल्लाह किरानवी साहब की किताब पढ़ने आना था? हवाला दिखाने आना था, हवाला दिखाने आना था। हवाला नहीं मिला, मिर्जा साहब कद्दाब दज्जाल साबित हुए, नहीं मिला हवाला। असल बात तो ये है ना, 6 साल उन्होंने करना क्या था? मैं चलिया जे सर, और 6 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਇਸ ਲੰਗੜੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੱਸੇ ਆਵੇ सर। बाकी आप इंतजार करते रहें। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए जी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया सीकर भाई, बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने गिच्ची से उसको पकड़ के रखा, और मिर्जा साहब की सदाकत पर एक लफ्ज उसके हलक से नहीं निकल पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, यही सच की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं आखिरी बात सिर्फ एक चीज, सॉरी भाई, इको आ रही है। अच्छा, सिर्फ आखिरी बात एक चीज करके, ये क्रिस्टल क्लियर है कि दुनिया के तमाम उलमा, तमाम मुसलमान रस्ते से हटा दिए जाएं, एक मुसलमान के ईमान लाने के लिए एक जर्रे का भी फर्क नहीं पैदा होता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रस्ते से हटा दिया जाए तो जमात अहमदिया दफन हो जाएगी, इनका नजरिया की चिता जल जाएगी चौंक के अंदर। ये इस चीज का इनको पता है। बहुत शुक्रिया। मैं इसी चीज के साथ सब दोस्तों से माजरत, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ जी। अतीक भाई आप करें बात, और उनकी ना इको होती है तो सारे भाई म्यूट रखे जब अतीक भाई बोल रहे हो। यार बस जज़ाकल्लाह, मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। आप सब लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि उसने हवाला नहीं दिया, जबकि वो यहाँ मान के गया है कि मिर्जा साहब ने गलत काम किया है। लेकिन मैं किसी दूसरे का भी दिखाऊंगा। भाई ये तो मसला नहीं है कि दूसरे का दिखाना है, पहले का दिखाना है। मसला ये है कि सीकर साहब ने एक हवाला पढ़ा है, तुम्हारा उस पर इतराज है कि ये हवाला गलत है, ये ऐसा नहीं कहा बेटा। उतनी सी बात है, उसका तुमने जवाब देना है। उसमें नई जलेबियां, नई कहानियां समझ से बाहर है, और अहमदियों का दिमाग टोटल मेरे ख्याल बंद, बिल्कुल बंद है। वो बंदा ये कह रहा है कि ये जो बंदा बात कर रहा है सीकर साहब, अफजल बड़ैच साहब की, ये गलत बात कर रहा है। उसका सीधा सा सवाल जवाब है कि ये देखो जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से बात हुई है। वो मान के गया है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने दजल किया है, किज़ब किया है, खुद मान के गया है। लेकिन कह रहा है कि मैं किसी और को भी, और ने कहा हमारा तुम्हारे से ये मसला नहीं। हम कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ने गलत बयानी की है तुमको। हाँ जी, हमने की है, हम ये किसी से हमने सुनी है बात तो की है, वो अलग मसला है। उसको इसमें मिक्स क्यों कर रहे हो? दो चीजों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मिर्जा गुलाम अहमद ने जो दजल किया है उसको मानो कि उसने दजल और किज़ब किया है और गलत बयानी की, इतना सा मसला है। इसमें क्या मुश्किल बात है? नहीं, अवैस को शाह साहब आने दें, अतीक शाह साहब, क्योंकि जिस दिन ये बात तय हुई थी ना, उस दिन तय ही ये हुई थी कि हमें हवाला मिल गया जो सीकर ने एतराज़ किया, हमें वो हवाला मिल गया, हम वो हवाला देंगे। जायद साहब, इसमें किसी किस्म के आपके क्वेश्चन से भी इवन शकूक व शुबात के उठने का शाइबा होता है। आप ऐसा क्वेश्चनेबल ना बनाएं। वो हवाला देने ही आए थे यार, हो रहे थे की करना आना सी ना, अजीब गल रिपीट करी जा रहे हो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ है, वो दो मामलात सन। आइटम नंबर 1 सी क़याम पाकिस्तान में अहमदिया, जमात अहमदिया का किरदार, वो असाइड हो गया। उसके ऊपर हवाला सीकर साहब ने देने या रिसर्च पेपर्स नहीं देने, वो मामला खत्म हो गया, क्लोज हो गया। आइटम नंबर 2 थी मेरी बराड के ऊपर सीकर साहब ने लूक से जो हवाला जात पढ़े और उसका जो वर्शन थी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की, वो उन्होंने पढ़ी। इसके ऊपर वो सीख पाते है सारा उतो पिट स्यापा जेड़ा राजा ताल मनान ने उस दिन का खड़ा किया, बाईकाट करो, बड़ैच दा बाईकाट करो, ये सारा उस बराड से शुरू हुआ था उस दिन कि भाई मिर्जा साहब के बारे में इन्होंने लाया है तो ये जनाब साढ़े नाल बड़ी ज्यादती होगी, जुल्म हो गया। इसको लेके शेख हादी हर बराड के ऊपर घूमता फिरा है कि सानू हवाला लभ गया, सानू हवाला लभ गया है। मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो उधर बाइबल में लिखा है, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग, और बाइबल से हम दिखाते हैं कि जो मिर्जा साहब ने कहा है वो बाइबल के अंदर लिखा है। ये मामला हमारा उनके साथ पेंडिंग था, यही आके बात भी हुई है। ये जायद साहब प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे सीकर साहब को मैंने कॉल करके बुलाया है कि वो आके बात कर रहे हैं, आप भी तशरीफ लाएं। हालांकि वो
प्लान में नहीं था कि सीकर साहब भी यहाँ पे मौजूद होंगे। वो तो अवैस और मेरे साथ बात करना आए थे कि ये ओपन मैटर है भाई, आप इसके ऊपर फॉलो अप क्यों नहीं हमें करवा रहे, कि सीकर साहब ने जो कहा हुआ है इसके ऊपर आप इस मैटर को क्लोज करवाएं और ये हमारे हमसे हवाला हासिल करें। जायद साहब सुन लें बार बात, हवाला हमारे पास मौजूद है, आप लोग हवाला ही लेने नहीं आ रहे हमारे पास, ना आप हमें बुला रहे हैं। तो ये था वो मैटर जिसके लिए यहाँ पे आए थे। सीकर साहब को बुलाया, दोनों में तय पा गया कि भाई ये ओपन मैटर है, उनके दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई कि इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो और थे कि करना है सन जनाब, उन्होंने साबित करना था कि सीकर साहब ने मन घड़त बात की है, मिर्जा साहब के ऊपर इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि सीकर साहब ने झूठ बोला है, वो हमारे से माफी मांगे कि बाइबल में ये हवाला पड़ा है और उन्होंने कहा है कि मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो मन घड़त लिखा है। लिहाजा उनके ऊपर अब जिम्मेदारी थी कि उसको जो सीकर साहब पे इल्जाम लगा रहे थे, हालांकि उन्होंने यहाँ पे साबित हो गया कि सीकर साहब ने किसी किस्म की कोई मनगढ़ंत बात और इल्जाम नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पे उनका सीकर साहब की बात का रिबटल वो अभी उन्होंने जो पेश करना था बाइबल से हवाला, वो पेश करने में एब्सोल्युटली वो नाकाम रहे। उन्होंने पेश नहीं किया, बल्कि वो हमारे किसी बुजुर्ग की इबारात जो है उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी, जो कि हमारे इन मौज़ूआत में किसी जगह भी डिस्कस नहीं हुए, ना ही वो हमारी कंसर्न थे, ना ही वो हमारा मौजू है। ये बात मैंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है, एक एक लफ्ज इसका अबहाम के बगैर है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा जो है वो बिल्कुल पैदा ना किया जाए फर्दर। थैंक यू। जी मैं कोई शक व शुबा नहीं पैदा कर रहा था वड़ाइच साहब, मैंने यही बात क्लियर की है कि इस बात को जो है असल जो बात है उसकी तरफ ना आने की बजाय जो तय हुआ था, जो यहाँ पे शेख आदी जो है वो सर पे टोकरा रख के लाया था कि हमें वो हवाला मिल गया, सीकर को हम ढूंढते फिर रहे हैं, हमने हवाला देना है। और ये बात अवैस की ब्राड पे शेख आदी ने आके की। अवैस को चाहिए कि उसकी हमें रिकॉर्डिंग दे कि जब शेख आदी ने यहाँ पे आके कहा था कि हमें हवाला मिल गया, हम सीकर को ढूंढते फिर रहे हैं, हमने हवाला देना है। ठीक है, उस दिन भी मैंने सीकर को बुलाया, ठीक है, उस दिन के बाद फिर हमारा वक्त तय हुआ और उस दिन मीर सलीम नहीं आया। उस दिन भी इसी बात के ऊपर तय हुआ था कि हवाला इनको मिल गया और हवाला इन्होंने पेश करना है। शेख आदी का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हमें वो हवाला मिल गया, सीकर ने झूठ बोला था, हम सीकर को झूठा साबित करेंगे। उस दिन ये नहीं आए। आज भी जब ये आए हैं तो इन्होंने पेश हवाला करना था, सीकर को झूठा साबित करना था। इनके साथ हमारी ये बात तय नहीं हुई थी कि रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने क्या लिखा है और उसके मुकाबले पे मेरा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क्या लिखा हुआ है। हमारा ये तो इनके साथ गुफ्तगू हमारी थी ही नहीं तय कि आपने हमें रहमतुल्लाह किरानवी साहब के हवाले देने हैं या रहमतुल्लाह किरानवी साहब को आपने साबित करना है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। डिस्प्यूट तो इस बात पे था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो तहरीर लिखी है जिसके ऊपर सीकर ने एतराज़ किया, आपने अपनी ब्राड के ऊपर चला के वहाँ पे भंगड़े डाले कि सीकर ने झूठ बोला है। तो आज यहाँ पे जब आप मैदान में आए थे तो आपने सीकर को झूठा साबित करना था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का वो हवाला दे के कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो बात लिखी है वो बाइबल में मौजूद है और ये बाइबल का रेफरेंस, हाँ आप बाइबल का रेफरेंस दे के मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को करते सच्चा साबित कि ये बात मिर्ज़ा साहब ने लिखी है और ये बाइबल का हवाला मिर्ज़ा साहब ने जो बात लिखी थी वो बाइबल से साबित है। लिहाजा रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने ये बात लिखी हुई है, सीकर साहब इसको आप अब साबित करें बाइबल से, ठीक है। और पहले जो देने आए थे वो हवाला दे के सवाल करते हैं ना सीकर से, यही बात है। आपने बात को नेल कर दिया है। मैं आपकी बात में से दो आम नुक्ते दोबारा रिपीट कर दो लोगों के लिए जिन्हें इस बात का पता नहीं था। ये जो पहली एग्जांपल इन्होंने दी वो रात 12 बजे का सेशन शेख हादी के कहने के ऊपर स्केड्यूल किया गया था। उस शेख हादी ने टाइम दिया था रात 12 बजे। वड़ाइच साहब छड्डो गल्ला ठहर जो जरा, वड़ाइच साहब ठहरो, माइक खोलो जरा, मेरे नाल रहो जनाब। वड़ाइच साहब कितनी बारी तुसी क्या कि भाई मीर आया ते मैं की क्या आया, हाय हाय हाय, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ऐसी दी तैसी को आवे मेरे सामने हक ते खलोए। उस दिन रात 12 बजे भी जब मैंने कॉल की सीकर साहब वाज स्लीपिंग, पहला ते इन्हां मैनू रिकॉग्नाइज नहीं कीता कि किहदी कॉल है। सुते हुए बंदे ने जिसले इन्हां मेरी आवाज पहचानी है कि मैं अफजल वड़ाइच है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਰਾੜਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਾਜ਼ਤ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ,
ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 8 ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਬਾਏ 1 ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਹਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹਵਾਲਾ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ बाइबल 'ਚ ना होवे। उर्दू में ताकि बाद में रिकॉर्डिंग के काम आए। उर्दू हाँ, मैंने वो बात मिर्जा गुलाम अहमद की पेश की है कि मैंने जो बात की है वो बाइबल में लिखी हुई है, ईसा अलैहिस्सलाम पे झूठा साबित हो गया। मिर्जा गुलाम अहमद को आज मैं दोस्तों को बता दूं, खुदा वाहिद की कसम, मीर सलीम ने आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कज़ाब और दज्जाल साबित किया इस पूरी 200 लोगों के सामने। और रजी नीचे सुन रहे हो, इसको उस्ताद कहते हो, है रजी, इसको उस्ताद कहते हो। तुमने इसको बताया नहीं था कि ये 2 वाकया था जिसको मिर्जा साहब ने 1 बना के दजल किया हुआ है? तुमने बताया तो था इसको। इस जाहिल को क्यों नहीं तुमने समझाया कि मीर साहेब ऐसे ना करे, ये क्यों पंगा लेने आया था? रहमतुल्लाह करानवी ने ये लिखा है, रहमतुल्लाह करानवी ने वो लिखा है। बेशर्मो, मिर्जा गुलाम अहमद को सच्चा साबित ही नहीं कर सके और फिर अब आयशा पे बकवास करा, फिर दौड़ा क्यों है खुसरे? अब भगौड़े, पहले भी तू ये भागा था उस दिन पाकिस्तान वाले हवाले के ऊपर, आज भी तू भागा है। तू चर्म जुबान सिर्फ आना सामने दोबारा। मैं फिर वड़ैच साहब 1 मिनट के नोटिस पे मैं हाजिर हूं, ऐसे चूहों की मंजी ठोकने के लिए हर वक्त तैयार है। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत काबिल इस्ताइश है सीकर साहब। अगेन मैं बात बता दूं, लास्ट टाइम जब रात 12 बजे शेख हादी ने तय किया था कि मीर सलीम साहब के दरमियान और मेरी तरफ से सीकर साहब के दरमियान ये बात तय हो गई थी कि होस्ट टू होस्ट उस दिन रात 12 बजे बात होगी। ये मेरा ख्याल है आज 3 या 4 दिन हो गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे, मैंने सीकर साहब को कॉल की, पहले इन्होंने ही वाज स्लीपिंग, इन्होंने पहचाना नहीं कि कौन है। जब इन्हें आवाज पहचानी, अच्छा वड़ैच साहब खैरियत है, मैंने कहा जी वो रात 12 बजे का तय हुआ पड़ा है और आप जनाब हाय किधर है? अरे जी ये तो कल की रात 12 बजे होना है। मैंने कहा नहीं ये रात अभी रात 12 बजे अभी का टाइम है, ब्राड आन है, आए। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। छठे मार के पानी दे 10 सेकंड 15 सेकंड के डिले के ही वाज राइट ऑन द ब्राड। 2 से 2.5 घंटे मेरा ख्याल है आप सीकर साहब हम बैठे हैं ब्राड के ऊपर, इंतजार करते रहे। शेख साहब को मैंने सेवरल कॉल्स भी की, लेकिन उस दिन मीर साहब शो अप नहीं हुए। ये बात अल्लाह को दुआ जी, लाश को प्रार्थना कर रहे सी कि मिर्जा साहब दे सच्चे होते को दे दे, को सानू को टोटका दे दे। जी, मीर साहब उस दिन शो अप नहीं हुए। उसके बाद शेख हादी ने कोई बराड नहीं छोड़ी जिसके ऊपर जा के वावेले नहीं किए कि सीकर ने झूठ बोला हुआ है, सीकर ने झूठ बोला हुआ है, ये हमारे साथ हवाला लेने आए। इस दौरान मैं ये भी कहता रहा कि उस दिन ब्राड लगाई है आपके कहने के ऊपर, होस्ट होस्ट होना था। मीर साहब आप पेश नहीं कर सके, नहीं वो नहीं ऐसा हो गया है, चले दोबारा कर लेते हैं, आप हमारे पास आए, हम आप। अब इन्होंने इस दौरान ये सेशन इनके कहने के ऊपर आज हुआ है। अवैस साहब ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके बुलाया फॉर द रैकेट बाय द वे, ये मैं आप सबको बता दूं। अभी अवैस साहब की जो ब्राड लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था इस ब्राड का। अवैस साहब ने मुझे व्हाट्सएप कॉल पे बुलाया है कि भाई ब्राड मैंने ऑन की है, इमरजेंसी मैटर है, अभी आओ। मैं उस वक्त बाय द वे फोन पे बात कर रहा था इनामुल्लाह विरक के साथ। सीकर साहब, इनामुल्लाह विरक को मैंने व्हाट्सएप पे 13 मिनट का सलीम मीर का क्लिप भेजा है, जिसमें सलीम मीर ने 135 साल का जमात अहमदिया का सोर और बंदर वाली झूठी रिवायत का जनाजा निकाल दिया है। मीर सलीम ने अपने ब्राड के ऊपर बैठ के अहमदियों को रिव्यू किया है, उनको उन्होंने शदीद मजम्मत किया उनकी कि जो लोग ये रिवायत पेश करते हैं हदीस बनाकर। मीर सलीम ने कहा है कि ये हदीस नहीं है। मैंने इनामुल्लाह विरक को वो क्लिप भेजा और कहा है कि जो तुम मुझे पिछले 20 साल से हदीस मान कर ये करते रहे और मैं कहता रहा हूं कि ये मनगढ़ंत चीज है, ये आपके मीर सलीम साहब ने इसको मनगढ़ंत रिवायत कह दिया है और ये हदीस नहीं है। अब आपका ये इस सुअर और बंदर वाला बयानिया दफन हो गया। ये सीकर साहब आज की डेवलपमेंट है, आप अंदाजा करें कि आज उन्होंने किस्मत बेचारे साहब आज वैसे ही ऑफिशियली तौर पे मीर सलीम ने स्टैंप लाई है मिर्जा साहब दे कज़ाब ते दजाल होते, ऑफिशियल स्टैंप लाती होने आज
ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मिर्जा साहब ਦਾ दिफा नहीं हो सकता। नीचे पाकिस्तान भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान भाई आप गवाह हैं कि मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ बात कर रहा था जब अवैस की मुझे कॉल आई है दूसरे फोन के ऊपर, मैंने आपको बताया कि मुझे अवैस साहब की कॉल आई है, इमरजेंसी बराड पे जाना है। तो ये पाकिस्तान भाई आपके सामने सारी सूरत हाल है, आप इस दौरान मौजूद रहे हो और गवाह रहना और जाके उन लोगों को आप क्वेश्चन करें कि जब उन्होंने इमरजेंसी ये सेशन आज खुद मुनक्कद करवाया था, इसके ऊपर उन्होंने सीकर साहब के रिबटल में बाइबल से हवाला पेश करना था जिसमें मिर्जा साहब ने जो अपनी किताब में लूक के ज़िमन में ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी मेंशन की है वो वही है जो बकौल आपके वो बाइबल में मौजूद है। वो बाइबल का हवाला यहाँ पे पेश करके सीकर साहब को रिबटल उन्होंने आज नहीं दिया, लिहाजा साबित हुआ कि उनका जो बयानिया उनकी ब्राड्स के ऊपर चल रहा है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है और एब्सोल्युटली अपनी आवाम के लिए भी गुमराह कर वो प्रोपेगेंडा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ? शाह साहब सीकर साहब किसी ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਜਦੇ ਲਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਜਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਹਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਰ ਕੋਨਾ ਖੁਦਰਾ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀਅਰ ਬਰਾਡ ਸੀ ਉਹ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨਗੜਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਈਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮਸ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਅਗਰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਦਜਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਵੈਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਚੰਨ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸੀਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਸੀਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਸੀਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ, ਰਿਕਾर्ड करा दे, ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫੁੱਦੂ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड साहब भी थले ओदा दा वो स्पीकर साहब आपने करानवी साहब का जवाब नहीं दिया। काइंड हार्टेड मैं क्यों दूं करानवी साहब का जवाब जब यह बात ही मिर्जा साहब की है। इररेलेवेंट, वो टॉपिक नहीं है ना काइंड हार्टेड साहब, इररेलेवेंट। यही तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाया एमडीओ ने आज तक। मिर्जा गुलाम अहमद को वो झूठा कह गया है, साबित सच्चा नहीं कर पा रहा, तो ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट करेगा। मैंने तो कहा है कि करानवी साहब के ऊपर मैं लाने बरात करूंगा, लानत डालूंगा, लेकिन तू पहले ये मान के मिर्जा गुलाम अहमद ने दजल किया बाइबल के साथ, मानता ना, फिर मैं करानवी साहब का भी कहता कि दजल किया। मिर्जा साहब को तो नंगा करके गया वो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है, भगोड़ा भाग के गया आज, मिर्जा साहब को नंगा करवा के गया, ट्रक के नीचे दे के गया। ये यकीन करो रमजान पे बहुत भारी है। जुल्म सिर्फ ये हुआ है अवैस को ब्रॉड दी फेंकनी चाहिए थी, आज मैंने रेती लितर इसकी पिट सुझा दी थी, आज मार मार के ब्रॉड नहीं थी फेंकनी चाहिए। नहीं, अवैस की भी मजबूरी, असल में अवैस के पास वहां पे मेहमान आ गए थे और अवैस